India and which country are planning a major sports partnership as their 100 year of sporting relations approaches in 2026? The correct answer ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟେ ମେଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର, ସେଇଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 2026ରେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1926ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ହକି ଟୁର୍ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 1926, ସେଇଟା 1926ରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇଟା 1926 ସେଇଟା ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା 2026, ତ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ 100 ଇୟର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମିଟିଂକୁ ଚେୟାର କରିଥିଲେ ୟୁନିୟନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମନସୁଖ ମଣ୍ଡାଭିଆ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନିଂ, ଇନୋଭେସନ୍ ଇନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଥିରେ କୋପରେଟ୍ କରିବେ ଦୁଇ ଦେଶ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ ଦ ସଙ୍ଗମ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନୋଭେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ? ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି IBM। IBM ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ ମେସିନ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ IBMର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଇଟା। ତ ଇଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏଇ ସେଣ୍ଟରଟାକୁ, ଆଉ ଏଇ ସେଣ୍ଟରଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାବ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହିବ ୟାର ଜାଗାଟା। ଓକେ, ୟାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପୋଜିସନ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହବ୍ ଫର୍ AI ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଦେଖନ୍ତୁ AIର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହବ୍ କରାଯିବ AIର ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର। ଓକେ, ତାପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାୟ ଦ ୟୁନିୟନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଦୁରାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି। ମଦୁରାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ହେଲା ୟୁନିୟନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ବା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହେଲା 4ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ, କୋଏମ୍ବାଟୁର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ତିରୁଚିରପଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ମଦୁରାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଟୁରିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାପରେ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସାଉଦର୍ନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଭୋକ୍ଡ ଦ ଇସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ 1955 mainly to secure the supply of which commodity? The correct answer ହେଉଛି LPG and natural gas। LPG ମାନେ ହେଉଛି liquefied petroleum gas and natural gasର ସପ୍ଲାଏକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ 1955କୁ ଇନଭୋକ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ବା ସେଇଟାକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସେଇଥିରେ। ରିଜନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଟେନସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ, ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ USA ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଇକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏହାର କି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ନା ଅଏଲ୍ ରେଫିନେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋପେନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟେନ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଥିରେ LPG ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ବି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଅଏଲ୍ ରେଫିନେରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ LPG ଆଉଟପୁଟ୍ ମେନଲି ଫର୍ 3 ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର OMCs। ତ 3ଟି ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟରକୁ LPG ଆଉଟପୁଟ୍ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ମାନେ କେଉଁ ଅଏଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆଲୋକେସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆଲୋକେସନ୍ ଦିଆଯିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ PNG କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ CNG ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଓକେ, ଏହାକୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ରୁଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ରିଫିଲ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନେ ଡେଟା ଥିଲା 21 ଡେଜ୍, ସେଇଟାକୁ 25 ଦିନ କରିଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। 25 ଡେଜ୍ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫର୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଦ ୟୁନିୟନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଟିଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିୟନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନକୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜଳଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ହେଲା, ଏବଂ ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ମଣିଷକୁ 55 ଲିଟର ଜଳ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ହେଲା, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ରୁରାଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଉଟଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ନା 8.69 ଲାख କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଯିବ ହେଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇଥିରେ ରହିବ 3.59 ଲକ୍ଷ 59 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ 15.8 କୋଟି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 81.1% ରୁରାଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍ କଭରେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ 100% ହର୍ ଘର ଜଳ ଯେଉଁ ହର୍ ଘର ଜଳ ଇନିସିଏଟିଭକୁ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି? ସେଇଥିରେ 100%
तो ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଆ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା India sent 1000 metric tons of rice as humanitarian aid to which country? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାଲବୀ। ହେଲା, ମାଲବୀ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଶକୁ 100 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ହେଲା ଗୋଟେ ମଣିଷର ସହାୟତା ପାଇଁ ହେଲା କିଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପଠାଇଛି ସେଇ ଦେଶକୁ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଦେଶରେ ବହୁତ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଫୁଡ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି। ଏହି ସିପମେଣ୍ଟଟା ହେଲା ନବା ସେବା ପୋର୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ପଠାଯାଇଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ ନିନୋ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପାଇଁ ଏହି ମରୁଡ଼ିଟା ହୋଇଛି ସେଇ ଦେଶରେ। ହେଲା, ଏଲ୍ ନିନୋ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ହିସାବରେ ୱାର୍ମିଂ ଆସୁଥିବା ପେସିଫିକ୍ ଓସିଆନ୍ର ଗୋଟେ ୱାଟର ଅଟେ। ହେଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍ମିଂ ୱାଟର ଅଟେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ରେନଫଲ୍ ମାନେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେନଫଲ୍କୁ କମେଇ ଦିଏ ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱେଦରକୁ ବା ପାଣିପାଗକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କରିଦିଏ। ହେଲା, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ମେଟାଲ ଲାଇଫ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ 2024କୁ କିଏ ଜିତିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏମୋଲ ପାଲିକର ଜିତିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ କିଏ ଜିତିଛି ମେଟାଲ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ 2024 ଏମୋଲ ପାଲିକର। ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା 21st ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଥିଏଟର ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ଶୋରେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମ୍ବେଲ ପାଲିକର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭେଟରାନ୍ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ 2024 କେଉଁ ସିଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ପେନ୍ର ବାର୍ସିଲୋନାଠାରେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିରା ବାର୍ସିଲୋନା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଆ ସ୍ପେନ୍ରେ ହୋଇଛି। ଓକେ, ୟାର ଥିମ୍ ଥିଲା ଦ ଆଇକ୍ୟୁ ଏରା। ଆଉ ଏଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ GSMA ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଥିରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। ଓକେ, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ନା TJ1600 D3 ହାଇପର ସ୍କେଲେବୁଲ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଏଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି କିଏ? ତେଜସ୍ ନେଟୱାର୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ କନଫରେନ୍ସ 2024 ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ICMR ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ କନଫରେନ୍ସ 2024କୁ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଥିମ୍ ହେଉଛି ଡିସ୍କଭରି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡେଲିଭରି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇଲିମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ। ହେଲା, ଏହାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ରଖାଯାଇଛି ନା 2030 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ପୁରାପୁରି ଇଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବ। ହେଲା, କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇଲିମିନେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ସେସନାକ୍ 150 ସ୍ୱାମ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଡେଭଲପ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ ଯେଉଁଟାକି ସେସନାକ୍ 150 ସ୍ୱାମ୍ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବେସ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ହେଲା, ସ୍ୱାମିଂ ଆଟାକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଅନମ୍ୟାନ୍ଡ କମ୍ବାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ତ ଏହାର ରେଞ୍ଜ ରହିବ 1000ରୁ 1500 କିଲୋମିଟର, ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ରହିବ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରିବ ଏବଂ ୱାର୍ ହେଡ଼୍ କାପାସିଟି ରହିବ 25ରୁ 40 କେଜି। ଓକେ, ତାପରେ ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଅନମ୍ୟାନ୍ଡ ୱାରଫେୟାର କ୍ୟାପାବିଲିଟିକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବ। ହେଲା, ଡ୍ରୋନ୍ ହେଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶହୀଦ 136 ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ଏଇଟା ସମାନ ଏବଂ USAର ଲୁକାସ୍ UAV ସହିତ ତାର ସମାନ ଅଟେ। ଓକେ, ତାର ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ ଆହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଫେୟାର 2024 ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଫେୟାର 2024 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି 40ତମ ଏଡ଼ିସନ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟରିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ନୋ ସ୍ମୋକିଂ ଡେ 2024। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟନେସଡେ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଏଇଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ 11 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ଆଉ ଏହାର ଥିମ୍ ରହିଛି ଯେ କ'ଣ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଏ ସ୍ମୋକ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ starts with a smoke free day. ଓକେ, এই থিমକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିକ୍ୟୁର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2024 ରିଲିଜ୍ଡ ବାଇ ନୀତି ଆୟୋଗ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ଏଡ଼ିସନ୍ ଏଇଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ ନୀତି ଆୟୋଗ। ଆଉ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଏହାର 5ଟି ପିଲର ରହିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ରେଭିନ୍ୟୁ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍, ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୁଡେନ୍ସ, ଡେପ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଡେପ୍ଥ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
कैटेगोरी मानक आम स्टेट मानक कैटेगोरी जानिबा आम ओडिशा एचिभर स्टेट रे अछि हला आउ किए अछंती एचिभर स्टेट रे ओडिशा गोवा एवं झारखंड अछंती तीनटा को मन रखि नेबे बाकी जिनिस मन रखिबा दरकार नै आउ गोटे कथा देखंतु माने सेकेंड एडिशन रे 10टी नॉर्थ ईस्टर्न एवं हिमालयन स्टेट को इंक्लूड करा जायछि एटा को भी मन रखि नेबे हला टॉप रे अछि देखंतु हम ओडिशा आउ ओडिसा रो स्कोर भी मन रखि नेबे 73.1% ओके आउट ऑफ 100 आउ देखंतु आउ गोटे नॉर्थ ईस्ट एवं हिमालयन स्टेट्स गुडी करे अरुणाचल प्रदेश टॉप करछि एवं ओवरऑल स्टेट रे हमरो ओडिशा नेक्स्ट ला हमरो जे द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन होस्टेड द आरआरबी कॉन्क्लेव 2026 इन व्हिच सिटी द करेक्ट आंसर होछि नुआ दिल्ली टारे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आरआरबी कॉन्क्लेव 2026 को होस्ट करिछि ओके तो देखंतु यार एटा इवेंट होछि आरआरबी कॉन्क्लेव 2026 ऑर्गेनाइजर होछि आईबीए हला थीम होछि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स फॉर आरआरबी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज हला कोन पइटा करा जायछि ना डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर रे आसुछि से एटा को गाइड करिवो ओके एवं आउ यार ऑब्जेक्टिव होछि बा उद्देश्य होछि जे रिफॉर्म्स अपॉर्चुनिटीज एवं रोड मैप गुडी को हला कहा पे रीजनल रूरल बैंक पय डिस्कस करा जिवो नेक्स्ट हला कोर्सेरा कोलैबोरेटेड विथ मिशन कर्मयोगी टू अपस्किल व्हिच ग्रुप तो करेक्ट आंसर होछि सिविल सर्वेंट्स गुडी को हला कोन तांकर स्किल को अपस्किल करिवा पय हला कोर्सेरा जोटा गुटे हमरो इंटरनेशनल एडटेक कंपनी होटे सी मिशन कर्मयोगी सहित माने हाथ मिलेछि ओके तापर देखंतु कोर्सेरा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्सेरा कोर्सेस डिलीवर करा जिवो आईगॉट प्लेटफॉर्म द्वारा ओके एवं मिशन कर्मयोगी को लॉन्च करा जायतला सेप्टेम्बर 2020 रे एवं यार ऑब्जेक्टिव होछि जे फ्यूचर को माने रेडी करा जिवो सिविल सर्वेंट मानक ओके नेक्स्ट ला हमरो फ्री एक्सेस टू द पीवी शब्द प्लेटफॉर्म हैज बीन एक्सटेंडेड टिल व्हिच ईयर तो करेक्ट आंसर होछि 2027 पर्यंत पीवी शब्द प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करा जायछि तार फ्री एक्सेस पाई ओके पीवी शब्द माने कोन प्रसार भारती शेयर ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन हला एटा को मन रखि नेबे एटा को लॉन्च करा जायतला मार्च 2024 रे वर्तमान यार फ्री एक्सेस को एक्सटेंड कर दिया जायछि मार्च 2027 पर्यंत हला प्रसार भारती को एस्टैब्लिश करा जायतला 1997 मसिया रे हेडक्वार्टर होछि नुआ दिल्ली एवं सीईओ होचंती गौरव द्विवेदी नेक्स्ट हला UIDA माने कोन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च करिछि तार प्रथम बक बाउंटी प्रोग्राम हला कोन पैना ता कहारो सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करिया पय इटा लॉन्च करिछि तो करेक्ट आंसर होछि आधार इकोसिस्टम को रो सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करिया पय UIDAI कोन करिछि ना बक बाउंटी प्रोग्राम को लॉन्च करिछि ओके तो देखंतु साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स गुडी माने एतरे इनवाइट करा जायछंती कोन पैना सिक्योरिटी वुलनरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करिवा पय हला रिस्क कैटेगरी कोटा ना देखो सॉरी रिस्क कैटेगरी क्रिटिकल हाई मीडियम लो चारोटी कैटेगरी अछि रिस्क कैटेगरी गुडी ओके तापर देखो 20 टी एथिकल हैकर एवं सिक्योरिटी रिसर्चर को सिलेक्ट करा जायछि ओके आ इटा इंप्लीमेंट करा जिवो कहा सहित ना कमलो आईटी प्राइवेट लिमिटेड सहित नेक्स्ट वन होछि द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स इन एफडीआई रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग व्हाट विथ इंडिया तो करेक्ट आंसर होछि जो देश गुडी को लैंड बॉर्डर हेला बा जमी सीमा जो देश गुडी को इंडिया सहित शेयर करूछंती हला तांको मानको पय एफडीआई रूल्स बना जायछि कोन पय ता सेही देश मानको इन्वेस्टमेंट करिवा पय हला एटा को मन रखिबे यूनियन कैबिनेट एथि पय अप्रूवल दैछंती को कंट्री हेबे एथिरे चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान म्यांमार एवं अफगानिस्तान हला तापर कोन छना 10% पर्यंत नॉन कंट्रोलिंग स्टेक अलाउ करा जिवो ऑटोमेटिक रूट द्वारा ओके एवं 60 दिन रो डिसीजन टाइमलाइन दिया जिवो हला इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर ए देश मान को एटा को मन रखि लेबे नेक्स्ट हला यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस्ड ए 300 बिलियन रेफिनरी पार्टनरशिप विथ व्हिच इंडियन कंपनी द करेक्ट आंसर होची रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प $300 बिलियन गोटे रेफिनरी पार्टनरशिप करिसंती ओके आउ एटा देखंतु प्रोजेक्ट ना रहिबो अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग जोटा कि हमरो रिलायंस इंडस्ट्रीज करिवो को जगह रे ना पोर्ट्स ऑफ ब्राउन्सविल टेक्सास थारे गोटे ऑयल रिफाइनरी करिवो हला एटा होची 50 वर्ष मध्य रे प्रथम एटा मेजर यूएस रिफाइनरी हबो आ जार कैपेसिटी रहिबो 1,68,000 बैरल सेल ऑयल पर डे रहिबो ओके नेक्स्ट हला which country withdrew from FIFA World Cup 2026 due to geopolitical tension मा geopolitical tension जोगु केउ देश को FIFA World Cup 2026 रु माने विथड्रॉ करा जायछि तो करेक्ट आंसर होछि ईरान को ओके
तो यहाँ जानते जिओ पॉलिटिकल जो होची हला वो टूर्नामेंट होस्ट करुच्ची कि यूएस कनाडा और मेक्सिको से ईरान माने स्थिर कर से खेलवा को जीव ना ओके आउ ईरान ग्रुप हूँ ग्रुप जी जो थे कि बेलजियम इजिप्ट न्यूजीलैंड और ईरान अच्छा है आ गोटे कथा देखो जो फिफा हम यहाँ 23तम फिफा वर्ल्ड कप हम ओके 23तम एडिशन नेक्स्ट है इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 वाज हेल्ड इन व्हिच स्टेट तो करेक्ट आंसर होची सिक्किम ठारे इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 हम ओके यहाँ मन रखिए यहाँ हम सेकेंड एडिशन आईटा सिक्किम पेंगोंग डिस्ट्रिक्ट रे हम यहाँ ऑर्गेनाइज करुच्ची आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड्स और थीम रोचे ऑर्चिड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी ओके नेक्स्ट है वर्ल्ड किडनी डे केबे सेलिब्रेट करा जाए तो करेक्ट आंसर होची मार्च मासर सेकेंड थर्सडे सेकेंड बुधवार दिन सेलिब्रेट करा जाए और ये वर्ष पड़ी 12 मार्च है 20तम एडिशन गोटे थीम होची किडनी हेल्थ फॉर ऑल केयरिंग फॉर पीपल एंड प्रोटेक्टिंग द प्लानेट ओके नेक्स्ट वन हूँ आमर मिजोराम लेजिस्लेटिव असेंबली पास करिछि गोटे रिजोल्यूशन है टू इनक्लूड व्हिच लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो करेक्ट आंसर होछि मिजो भाषा को है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रे मिसेबा मिजोराम लेजिस्लेटिव गोटे रिजोल्यूशन पास करिछि मिजोराम है तार निजर लेजिस्लेटिव असेंबली ओके तो यहाँ मन रखिने 8th शेड्यूल रे 22 टी लैंग्वेज अच्छी यहाँ को मन रखिने नेक्स्ट है आमर जे इंडियार रिटेल इन्फ्लेशन बा सीपीआई केते प्रतिशत रही फेब्रुआरी 2026 रे तो करेक्ट आंसर होची 3.2% रही ओके नेक्स्ट है जे रिवाइज जीडीपी रो बेस ईयर रिवाइज करिया परे 2022-23 को है रिवाइज फिस्काल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 केते प्रतिशत होची जीडीपी रो तो करेक्ट आंसर होची 6.7% होची एटा को मन रखिने ओके देखो यहाँ सबको देखने फाइनेंशियल ईयर 23 रे केते 24 रे 25 रे केते फिस्काल डेफिसिट अमाउंट केते थिला एवं केते प्रतिशत थिला ओके एंटोनियो कास्ट रीस्ट ये रिसेंटली टेकन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री तो करेक्ट आंसर होची चिली है चिले रो प्रेसिडेंट हिसाब से जोस एंटोनियो कास्ट रीस्ट को अपॉइंट करा जाइछबा से शपथ ग्रहण करिसंते है ये 38 प्रेसिडेंट अटंती चिले रो आउ ये रिप्लेस करेंगे गैब्रिएल बोरिंग को आउ यहाँ कार्यकाल बा टर्म रहिबो 4 वर्ष आउ कैपिटल होची चिले रो सांटियागो करेंसी होची चिलियन पेसो नेक्स्ट वन होची हमरो आईआईटी बॉम्बे पार्टनर विथ व्हिच कंपनी टू लॉन्च सस्टेनेबिलिटी स्किल हब तो करेक्ट आंसर होची हनीवेल है हनीवेल गोटे कंपनी अटे जहाँ सहित आईआईटी बॉम्बे मिसिकी गोटे सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब को माने लॉन्च करिवो ओके यार ऑब्जेक्टिव रहबो जे सस्टेनेबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एट पोवाई कैंपस है जो पोवाई कैंपस अच्छी से जगह यहाँ गोटे सस्टेनेबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करा है आउे 1 लाख स्टूडेंट 2030 पर्यंत 1 लाख स्टूडेंट को माने टार्गेट करा दिज्व ट्रेनिंग ओके नेक्स्ट वन हूँ यहाँ फंड पैसा किए देव तो हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशन इंडिया फाउंडेशन यहाँ को फंड कर नेक्स्ट है एज पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स 2025-26 खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज तो ये कही द्वितीय एडवांस एस्टिमेट 2025-26 अनुजाई जो खरीफ ऋतु जो खाद्य शस्यर उत्पादनटा केते होइथिला तो करेक्ट आंसर होची 1741.44 लाख मिलियन टन होइथिला ओके एलएमटी मान होची लाख मिलियन टन ओके आउ एटा को रिलीज करिथंती मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फूड वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान आउ रवि देखो रवि ऋतु रे थिला 1745.13 लाख मिलियन टन है आउ हमर खरीफ रे केते थिला खरीफ रेटा 1741.44 एलएमटी ओके एटा को मन रखिने देखो खरीफ ऋतु रे माने ग्रोथ होइछि 2.8% जोटा कि 46 एलएमटी बढ़ी एवं रवि ऋतु रे 53 एलएमटी बढ़ी जोटा कि 3.2% इनक्रीज होती है माने प्रीवियस ईयर रो तापर नेक्स्ट है देखो राइस रो माने उत्पादन केते होइछि 1239.28 एलएमटी एवं व्हीट बा गहम 1202.10 एलएमटी ओके नेक्स्ट है हमरो व्हिच पोर्ट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म तो करेक्ट आंसर होची वीओ चिदम्बरम पोर्ट है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करिछि तो ये जो फर्स्ट पोर्ट होते डिजिटल ट्विन माने कोन ना डिजिटल ट्विन माने देखो कोन रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर माने जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो रेप्लिका अछि सेही भलिया आ गुटे से पाखरे माने गुटे आ गुटे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करा जाइछि तार रेप्लिका माने होची कॉपी ओके तो कौन पाई ना इफिशिएंट पोर्ट मैनेजमेंट है पोर्ट रो इफिशिएंट मैनेजमेंट पाई करा जाइछि नेक्स्ट है हमरो अंडर द न्यू GRAM-G स्कीम हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड एनुअली तो करेक्ट आंसर होची 125 दिन रो काम दिया जिवो
ହେଲା ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଅଛି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ VBGRM ଏଟାକୁ ମନରେଗାକୁ ବଦଳାଇ ଯାଇଛି ହେଲା ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା ଗ୍ରାମୀଣ ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ଥିଲା ହେଲା MGNREG ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି VBGRMG କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ନା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି 95,692 କୋଟି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2026-27 ପାଇଁ। ଓକେ ଏଇଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ MGNREGକୁ ଆଉ ସେଣ୍ଟର 60% ଦେବ ୟାର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବ 40% ହେଲା। ଆଉ ଏଡ଼ିସିନାଲ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା MGNREGର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ବଳକା ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଋଣକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର in 2025 India became the largest exporter of cotton products to which country? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମେରିକା ହେଲା। ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରିଥିବା ହେଲା ଯେଉଁ କଟନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା କଟନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ କିଏ ଅଟେ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଟେ ହେଲା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଅଟେ। ତ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେଇଛି। ଓକେ ଆଉ ଏଇଟା ଡାଟା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଅଣାଯାଇଛି ନା US ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମର କହିପାରିବା ହଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ହେଲା କଟନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ସେଇଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି ହେଲା। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେତେ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି 0.6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ଚାଇନା କରିଛି 0.5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ଦ ଏସିଆ କପ୍ ଆର୍ଚେରୀ 2027 ସେକେଣ୍ଡ ଲେଗ୍ ଇନ୍ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଗ୍ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଗ୍ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିପାରିବା। ଓକେ ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହେବ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତ ଏଇଟା 22 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ 2005 ମସିହା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହୋଇଥିଲା ତାର 22 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିନେବା 2026 ଏସିଆ ଆର୍ଚେରୀ କପ୍ କେବେ ହେବ ନା ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରୁ 26। ତାପରେ ପାରା ଆର୍ଚେରୀ 2026 କେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ହେବ ଗୁଜୁରାଟର ଏବଂ ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଆର୍ଚେରୀ 2026 ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କୋଲକାତା ଠାରେ ହେବ। ଓକେ ଏବଂ ଆର୍ଚେରୀ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2026 ମେକ୍ସିକୋର ପିୟୁଏଲା ଠାରେ ହେବ ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ KSRTC ଓନ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଲା। ଧ୍ୱନି ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ସ୍ପନ୍ଦନା ପାଇଁ KSRTC ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛି। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ KSRTC ମାନେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆମର ଯେମିତି OSRTC ଅଛି ତାଙ୍କର KSRTC ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତ କହିବାନି ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହଁ ଏଟା ଭିଜୁଆଲି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପାଇଛି ନା ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଇନୋଭେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆୱାର୍ଡ 12 PSU ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛି ହେଲା KSRTC ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ନୋମୁରା ହେଲା। ନୋମୁରା ଇଣ୍ଡିଆର GDPକୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ କେତେ କରିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2027 ପାଇଁ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 7% କରିଛି। ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେ ସେବି ଫର୍ମ କରିଛି ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ୟାନେଲକୁ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ କିଏ ଚେୟାର କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଚେୟାର କରିବେ ଡକ୍ଟର DB ଫାଟକ। ଓକେ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ୟାନେଲଟା କ'ଣ ନା ଟେକ୍ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଫର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ ହେଲା ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯିବ ହେଲା ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରାଯିବ। ଓକେ ଆଉ ଏ ଟୁଲ୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ଟୁଲ୍ସ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେବି ସୁଦର୍ଶନ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଅଟେ ହେଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କେଟକୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେବି ରାଡାର ବା RAIDAR କହିପାରିବା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ AI ବେସ୍ ଏଡ୍ ମନିଟରିଂ ମାନେ ପୋର୍ଟାଲ ଅଟେ। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଟୁ କମ୍ବାଟ୍ ଇସଲାମୋଫୋବିଆ ଏଇଟା 15 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପାଏ ଡେ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାଥରେ ପଢ଼ିଥିବେ ପାଏ ଡେଟା 14 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍। ଓକେ ତାପରେ କେଭି ରମଣା ମୂର୍ତ୍ତି has been appointed as whole time member of which organization ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା କ'ଣ ନା ହୋଲ୍ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ କେଭି ରମଣା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି କମ୍ପିଲା ଭେଙ୍କଟ ରମଣା ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ହୋଲ୍ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମାନେ ସେବିରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ ଅଶ୍ୱନୀ ଭାଟିଆଙ୍କୁ। ଓକେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କମଳେଶ
चंद्र बर्षनी, संदीप प्रधान एवं अमरजीत सिंह। नेक्स्ट है which global tech leader recently announced they would step down as CEO after an 18-year tenure having led the company since 2017 नो 2007। तो करेक्ट आंसर होची शांतनु नारायण। ओके, शांतनु नारायण एडोबी जानते एडोबी जो फोटोशॉप ये गुड़िक अच्छी तार सीईओ थे से पदरू इस्तीफा देते है 2007 मसीह से मैंने सीईओ अपॉइंट होते बर्तमान 2026 18 वर्ष पर से इस्तीफा देते। नेक्स्ट वन हूँ द आरबीआई लॉन्च्ड ए पायलट अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट्स इन मार्च 2026। व्हिच स्टेट इज होस्टिंग दिस पायलट इनिशिएटिव? द करेक्ट आंसर हूँ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जे आरबीआई गोटे पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करता अवेयरनेस प्रोग्राम कहा ना डिजिटल पेमेंट उपर मार्च 2026 आईटा होस्ट करता पायलट इनिशिएटिव को महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र एवं किए मिसिकी सीएससी गवर्नेंस सर्विस ऑफ इंडिया मिसिकी करते कैंपेन टाइटल थिला द आरबीआई अनवील्ड मल्टीमीडिया कैंपेन टाइटल कौन था टाइटल ना थोड़ा ध्यान से है। तो जोड़ा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन समय एनकरेज कर सचेतनता प्रति। तो यहाँ टार्गेट रखा 10 लाख पार्टिसिपेंट है ग्रामांचल एवं सेमी अर्बान एरिया रे ये माने पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, आईटा के ना यहाँ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक जोटा कि मार्च 9 रु मार्च 13 2026 सेलिब्रेट करा से लॉन्च करा जायतिला। ओके, तापर प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज द 22nd इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम फ्रॉम व्हिच सिटी? तो करेक्ट आंसर होची गुवाहाटी आसाम। आसाम रो गुवाहाटी रु प्रधानमंत्री मोदी 22तम इंस्टॉलमेंट बा 22तम किस्ती प्रधानमंत्री किसान रो ए स्कीम रो रिलीज करिसंती। ओके, तो यहाँ केते टंका रिलीज करिसंती से 18,000 ओके केते 18,640 कोटी रिलीज करिसंती 9.32 कोटी माने फार्मर परिवार को। ओके, तापर ये देखो 2000 टंका दिया डीबीटी माध्यम प्रत्येक फार्मर मानक चाषी मानक आउ स्कीमटा लॉन्च करा जायतिला 2019 मसीहा फेब्रुआरी 2024 रे जोथि कि माने प्रत्येक माने वर्ष एनुअली बा वार्षिक 3टी किस्ती रे 6,000 टंका लेखाएं माने 6,000 टंका दिया 3टी किस्ती रे 2,000 टंका। ओके, नेक्स्ट वन होची हमरो व्हाट इज द टारगेट योर फॉर द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन टू कम्प्लीटली इराडिकेट चाइल्ड मैरेज इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर होची 2030 है 2030 पर्यंत हमरो भारत सरकार बा माने गोटे लक्ष्य रखिछन्ती जे 2030 पर्यंत जो बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन को लॉन्च करा जायछि एथिपई हला कोन ना चाइल्ड मैरेज बा जो शिशु विवाह जो करा जाउछि सेटा को बंद करबा पई संपूर्ण रूपे बंद करबा पई। ओके, तो देखंतु एटा शॉर्ट टर्म होछि रिड्यूस करा जायछि आगुरु 2026 पर्यंत 10% रिड्यूस करा जायछि हला आउ एथि में देखंतु यूएन रो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3 एटा कमिटमेंट करिछि हला ग्लोबली एवं बालोद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ बालोद डिस्ट्रिक्ट प्रथम हो जाइए भारत प्रथम डिस्ट्रिक्ट हो जाइए जो जगह कि आउ चाइल्ड मैरेज हो ना बा फ्री चाइल्ड मैरेज फ्री डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट वन होची एज ऑफ मार्च 2026 हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया आर कवर अंडर द मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग रिजाइम फॉलोइंग द फेज वीआई इम्प्लीमेंटेशन? तो करेक्ट आंसर होची 380 माने डिस्ट्रिक्ट को कवर करा जाइए कौन ना गोल्ड हॉलमार्किंग रिजाइम रे। ओके, मार्च 2 2026 पर्यंत यहाँ फेज वीआई थिला यहाँ को मन रखी ने। नेक्स्ट वन हूँ तो देखो 7टी डिस्ट्रिक्ट को मैंने ऐड करा जाइए से भितर वाला कौन फेज वीआई मैंने फेज 6 रे 7टी नुआ डिस्ट्रिक्ट को ऐड करा जाइए जोटा कि पंजाब रो रूपनगर, महाराष्ट्र रो बीड एवं एमपी रो नीमुच है यहाँ मैंने इम्पोर्टाटा मुझे कहीदेली। तापर देखो कौन अच्छी ना जून 2021 ओके जून 2021 रे 256टी डिस्ट्रिक्ट को हॉलमार्किंग आरंभ करा जायतिला। ओके, गोल्ड ज्वेलरी एवं गोल्ड आर्टिफैक्ट्स अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 अनुसार को माने इम्प्लीमेंट करा जाउछि। नेक्स्ट ला द इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 वाज रिसेंटली इनागुरेटेड एट व्हिच फैसिलिटी सेंटर? तो करेक्ट आंसर होछि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जोटा कि चेन्नई रे अछि सेही जगह रे इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 को इनागुरेट करा जाइछि हैला। तो एटा को मन रखि नेबे आ ऑर्गेनाइजर थिले एथरो कि ना आईसीएफ ऑर्गेनाइज करिछि का सहित मिसिकी ना कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सहित मिसिकी। ओके, नेक्स्ट वन होछि हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज 93rd चेस ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 17? तो करेक्ट आंसर होछि आरब डेंगला हैला। आरब डेंगला
ये होचंती आम इंडिया 93तम चेस ग्रांड मास्टर है जहाँ बयस हूँ 17। तो 92nd के थे 92nd थे आर्या बर्षिनी जी जनवरी 2026 टाइटल को जीती थे। ओके नेक्स्ट वन हूँ इंडोनेशिया हैज ग्रीन लीड द परचेज ऑफ व्हिच इंडियन रशियन जॉइंटली डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम फॉर मेरीटाइम सिक्यूरिटी। तो करेक्ट आंसर हूँ कौन हम ना ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल को किणवा इंडोनेशिया तार लाइट को ग्रीन कर दी से माने तार एप्रुवाल दे देछि। ओके तो देखो मार्केट इंडोनेशिया हूँ सेकेंड कंट्री गोटे ब्रह्मोस को एक्वायर करें क्या ना फिलिपाइंस हूँ फर्स्ट कंट्री। आउ ये डील कर इंडोनेशिया सहित सीटा 200 रु 450 मिलियन डॉलर टंकार रखा जाए डीलटा है। तो आउ इंडिया 2029-30 मसीहा पर्यंत है जो तार डिफेन्स एक्सपोर्ट को है डिफेन्स एक्सपोर्ट को 50,000 कोटी टंकार एम कर 2029 एंड 30। Which Indian Navy ship participated in the 58th National Day celebrations of Mauritius on March 12, 2026? The correct answer होची INS त्रिकांत है। INS त्रिकांत मॉरिशियस रो जो नेशनल डे बा जातीय दिवस मार्च 12, 2026 रे जो होइतिला सेहिथिरे माने कोन करछि पार्टिसिपेट करछि। आ ओइटा होची 58तम नेशनल डे अटे मॉरिशियस रो। ओके तो मॉरिशियस रो माने कैपिटल ला कोन मॉरिशियस रो कैपिटल होची पोर्ट लुइस एटा को मने रखि नेबे। तो आउ जो INS त्रिकोण यहाँ गोटे तलवार क्लास अटे गाइडेड मिसाइल अटे। ओके आउ यहाँ को यंतर शिपयार्ड रशिया यहाँ को तैयारी करथिला। ओके यहाँ को मन रखि नेबे। आउ यहाँ को डिप्लॉय करा जायतिला को जगह ना साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन रो साउथ वेस्ट रे। ओके नेक्स्ट वन होची हमरो जे फिच रेटिंग इंडिया रे जीडीपी को फोरकास्ट करिछि केते फाइनेंशियल ईयर 2026 रु तो करेक्ट आंसर होची 7.5%। ओके साथी ऐप इज डेवलप्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। तो करेक्ट आंसर होची मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एवं IIT कानपुर द साथी ऐप को लॉन्च करिसंती है। तो साथीर फुल फॉर्म होची सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प। ओके एटा को डेवलप करिसंती मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT कानपुर कोन पे ना JEE नीट CUET SSC IPS रेलवे एटा मान गोटे गवर्नमेंट पोर्टल करा जायछि साथी है गवर्नमेंट ऐप कहि परिबे माने एथिरे लोक माने स्टूडेंट माने प्रिपरेशन करि परिबे एही एग्जाम मान को पय। नेक्स्ट है आमर जे व्हाट इज द रिवाइज फास्टैग एनुअल पास फी इफेक्टिव फ्रॉम एप्रिल 2026। तो करेक्ट आंसर होची 3075 टंका अटे एनुअल पास फी कहार फास्टैग रो है जो आप टोल गेट गला बेले जो दौरान से आगुरी 3000 था बर्तमान 3075 टंका कर फर्स्ट एप्रिल 2026 रु लागू हम है। आउ भैलिडिटी रही 200टा टोल क्रॉसिंग पर ईयर आप करेंगे है ना जब 3075 टंका आप सरी जाऊँ जोटा आगुरी हम से ओके नेक्स्ट आमर 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 को किए जीति। तो करेक्ट आंसर होची बैरा मुथु किए बैरा मुथु आर है आर बैरा मुथु जे कि जने तमिल रो कवि अटंती बा पोएट अटंती ये होचंती थर्ड माने तृतीय तमिल अटंती है ये माने ये पुरस्कार को जीति प्राइज दि जाउची 11 लाख टंका गोटे सरस्वती स्टैच्यू बा बागदेवी स्टैच्यू भी कहि परिबा हमें। आ 2024 रो विनर थिले विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट वन होची हमरो क्यों फिल्म बेस्ट माने पिक्चर अवार्ड पाइछि ऑस्कार 2026 रे। तो करेक्ट आंसर होची वन बैटल आफ्टर एनादर एटा को मने रखि नेबे। ओके वन बैटल आफ्टर एनादर आ 98तम एकेडमी अवार्ड बा ऑस्कार अवार्डटा हला USA रो डॉल्बी थिएटर रे कोन होइतला ना करा जायतला अनुष्ठित होइतला है। आउ जो वन बैटल आफ्टर वन तार ये 6टी ऑस्कार अवार्ड जीति एवं सिनर फिल्मटा 16टी नॉमिनेशन होची जोटा कि हाईएस्ट अटे। आ गोटे नुआ कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा जायछि जोटा कि अचीवमेंट इन कास्टिंग बा बेस्ट कास्टिंग भी आपन कहि परिबे। ओके नेक्स्ट हमर हु ओन द पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन। तो करेक्ट आंसर होची शुभमन गिल है। शुभमन गिल को एटा माने BCCI रे जो नमन अवार्ड रे एटा एइतरे सम्मानित करा जायछि कोन पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन रे शुभमन गिल को दिया जायछि एवं वुमेन्स रे काहाको स्मृति मंदना को दिया जायछि। ओके एटा नुआ दिल्ली ठारे होइतला माने BCCI रो नमन अवार्डटा आ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दि जण को दिया जायछि रजर बिनी एवं राहुल द्रविड़ को। तापर देखंतु पर्पल फेस्ट फॉर दिव्यांगजन 2024 क्यों मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करिछि। तो करेक्ट आंसर होची मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एटा को ऑर्गेनाइज करिछि। ओके तो एटा राष्ट्रपति भवन ठारे होतला माने नुआ दिल्ली रे एटा दिव्यांगजन मानकर इंक्लूजन एवं अवेयरनेस एटा फोकस करिवो।
तापर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024 रो थीम बा विषय कोन तो करेक्ट आंसर होची सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स हला जोटा कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे केबे बा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स केबे सेलिब्रेट करूछे ना 15 मार्च रे हम सेलिब्रेट करूछे हला थीम को मने रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमरो जे एट व्हाट एज डिड सूर्या मिधा बिकम ए बिलियनियर माने गुटे केते वर्ष बयस रे सूर्य मिधा माने गुटे बिलियनियर हो जाइछंती तो करेक्ट आंसर होची 22 वर्ष बयस रे हला ये सबठारु यंगेस्ट अटंती एरा को मने रखिनिबे आ यांकर नेटवर्थ होची $2.2 बिलियन हला आ यांकर स्टार्टअप होची मर्सर जोटे गुटे एआई हायरिंग स्टार्टअप होटे ओके ये कहार रेकर्ड को भांगी देले ना मार्क जुकरबर्ग जे कि फेसबुक बा मेटा कहि परबा जार फाउंडर हला तांकर रेकर्ड भांगी देले ये 23 वर्ष बयस रे कोन माने बिलियनियर होइतले किंतु हमर जो सूर्य मिधा ये 22 वर्ष रे हो जाइछंती ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आरबीआई's 2024 प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन डिविडेंड डिक्लेरेशन बाय कमर्शियल बैंक्स तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी योर डिविडेंड नाउ लिंक टू CET1 रेशियो हला CET1 रेशियो को डिविडेंड गुडी को वर्तमान लिंक करा जिवो हला जोड़ा कि माने आरबीआई रे जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स बाहरी छी हला बा रिपोर्ट ता जोड़ा कि डिविडेंड को डिक्लेयर करा जिवो कमर्शियल बैंक मान को द्वारा हला देखो आरबीआई इसी को जे डिविडेंड नॉर्म 2026 को जोथरे कि डिविडेंड को कैपिटलाइज करा जिवो बा दिया जिवो केते ना 75% केते हला कोन ना पीएटी माने होची माने आफ्टर टैक्स हला जो परसेंटेज आफ्टर टैक्स हला टैक्स पर 75% डिविडेंड दिया जिवो बैंक रो प्रॉफिट रो ओके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जोटा आपन कहि परिबे तापर अर्लियर एटा थिला हला एटा लिंक करा जाउतला कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बा सीआरआर एवं नॉन परफॉर्मिंग एसेट रे एटा को लिंक करा जाउतला वर्तमान पेट रे लिंक करा जाउछि ओके तो एटा जो लिंक सीईटी जो कहली कॉमन इक्विटी टियर 1 बा सीईटी रेशियो ला जोडी गोटे कोर कैपिटल स्ट्रेंथ गोटे एटा को लिंक करा जाउछि वर्तमान और जो CET1 टा एटा 8% रु अधिक अटे हला 8% रु अधिक को कौन से डिविडेंड अलाउ करा जिवो नाही ओके एटा को मने रखिबा सॉरी एवं 8% किबा तार थारु कम जोटा होची सेटा CET अटे बा कॉमन इक्विटी टियर 1 ओके आरआरबी एवं लोकल एरिया बैंक केवल ताकर प्रॉफिट 80% को निजेर पे आउट करि परिबे एवं एटा शेड्यूल कमर्शियल बैंक माने 75% ओके नेक्स्ट हला हमरो प्राइवेट बैंक अर्न अप्रोक्सीमेटली हाउ मच फ्रॉम मिनिमम बैलेंस पेनल्टी फाइनेंशियल ईयर 23 टू 25 तो करेक्ट आंसर होची 11000 कोटी टंका प्राइवेट बैंक माने इनकम करिसंती मिनिमम बैलेंस पेनल्टी होला माने आप जो 1000 की 5000 जो मिनिमम पे नथले जो पैसा को माने कटि जाय सेटा कमे कहचे मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज ओके सेइतरु 11000 कोटी टंका इनकम करछि के इनकम करिसंती तो एटा प्राइवेट बैंक करिसंती 11000 कोटी टंका पब्लिक सेक्टर बैंक 8093 कोटी करिसंती हला प्राइवेट बैंक मानक मधुर एचडीएफसी 3800 कोटी इनकम करछि किंतु एसबीआई रो कोनोसी समिति ए नाही जोटा हला थिला बाकी मार्च 2020 रु से उठे देछि मिनिमम बैलेंस पेनल्टी को हला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओके तो आज पे एतिकी एमसीक्यू थिला फ्रेंड्स आशा करूछि एमसीक्यू गुडा को भल लागिथिबो आपन माननकु ओके थैंक यू।